اور میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان تمام کنفیوژن، ان تمام سوالات کا جواب، اس لیے آپ دل میں نیت کر لیں کہ آپ نماز پڑھنے جا رہی ہیں تراویح کا، اور اگر کسی کو 2 ہی سورہ یاد ہے تو بار بار کر کے آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو سامان رکھی ہے کھانا پکنے کے لیے، وہ جل رہا ہے یا پھر کچھ ایسا ضروری کام، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ لیں۔ لیکن اگر ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ یہ اتنا بابرکت والا مہینہ ہے کہ ہر کوئی ایمان والا شخص اپنے اپنے طریقے سے اس کا استقبال کر رہا ہے، اور سب بے حد خوش ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں پھر سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے پچھلے سال ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن اس سال قبروں میں ہیں، اسی لیے ہر انسان اس بات پر خوش ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پھر سے یہ بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، اور عورتیں بھی بہت خوش ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی بہت خوش ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں پھر سے بخشش کا اور مغفرت کا ایک موقع اور عطا کیا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ ہم سبھی کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب آتا ہے تو عورتیں بہت سیریس ہو کر سنجیدگی کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، یعنی ہر چیز میں وہ مردوں سے آگے ہوتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، تراویح پڑھتی ہیں، اور روزہ افطاری کا تیاری کرتی ہیں، سحری کا انتظام کرتی ہیں، بہت خوشی اور جوش سے۔ تو لیکن ہماری بہنیں، ہماری مائیں کچھ سوالات کو لے کر بہت پریشان رہتی ہیں، اور ان کا سوچنا اور ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان تراویح کی نماز گھر پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیسے پڑھیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو اسپیشل اور ایک دم خاص طور پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہے، اور میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان تمام کنفیوژن، ان تمام سوالات کا جواب انشاءاللہ حل کرنے کی اور اس کو بتانے کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اسی لیے آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہماری ماں اور بہنوں کا سوال ہوتا ہے کہ تراویح کے متعلق سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ ان کا سوال ہوتا یہ ہے کہ کیا تراویح کی نماز کے لیے نیت کیسے کریں، اور پھر تراویح کی نماز 2 کر کے پڑھیں یا پھر 4 کر کے پڑھیں، اور یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کم سورہ یاد ہے تو پھر کیا کریں، اور اگر تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی ضروری کام آ گیا تو پھر کریں یا پھر نہ کریں، اور پھر یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ کیا تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام سوالات کا جواب انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، کیا عورتیں گھر میں تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو پھر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ گھر میں تراویح کی نماز عورتیں پڑھ سکتی ہیں، ہاں اگر ان کے گھر کے پاس مسجد ہے اور وہاں پر تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے تو عورتیں جا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا ہے، تو جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی انتظام نہیں ہے تو وہ گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں کہ کیا تراویح کی نماز فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا پھر سنت مؤکدہ ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کے پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, आपके सहाबे इकराम ने पढ़ी है, फिर उसके बाद औलिया इकराम, ताबईन और तबे ताबईन ने, और आज तक पढ़ी जा रही है। तो तरावी की नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, इसको छोड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। तो हर मर्द और औरत दोनों के लिए जरूरी है कि वो तरावी की नमाज पढ़े। अब अगला मसला ये है, क्या तरावी की नमाज के लिए नियत किया जाए और किया जाए तो फिर कैसे? तो मैं आपको बताते चलूं कि नियत होता है यानी दिल के इरादे को नियत कहा जाता है। तो आप दिल में नियत कर ले कि आप तरावी की नमाज पढ़ने जा रही हैं। हमारी माँ और बहनें इस नियत को लेकर बहुत परेशान रहती हैं और उनका ये सोचना होता है कि हम नियत कैसे करें तरावी की नमाज के लिए। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपके दिलों के अंदर जो राज छुपा हुआ है और आप जो सोच रही हैं, आप जिसका इरादा करती हैं, वो सब कुछ अल्लाह को मालूम है। इसीलिए आप दिल में नियत कर लें कि आप नमाज पढ़ने जा रही हैं तरावी का, तो आपको जबान से बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने आपके इरादे को जान लिया है। तो आपको जबान से आप कोई भी काम करती हैं, आप घर का काम करती हैं या फिर बच्चे के बारे में कुछ करती हैं या फिर कोई भी काम, नमाज को छोड़कर अगर कोई भी काम आप करती हैं, तो क्या आप हर काम को करने से पहले बोलती हैं जुबान से? नहीं, बल्कि आप क्या करती हैं, इरादा करती हैं कि मैं ये काम करने जा रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही आप तरावी की नमाज पढ़े या फिर कोई भी नमाज, तो आपको जुबान से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने दिल में इरादा करके नमाज पढ़ सकती हैं। अब अगला मसला ये है कि तरावी की नमाज 2-2 करके पढ़े या फिर 4-4 करके। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, लोगों का सवाल ये भी होता है कि तरावी की नमाज 8 रकात पढ़ी जाए या फिर 20 रकात। तो मैं आपको बता दूं कि तरावी की नमाज 8 रकात पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आम दिनों में तहज्जुद की नमाज कितना है, अगर किसी से भी सवाल किया जाए इस बात को लेकर, तो वो क्या कहेगा कि 8 रकात है तहज्जुद की नमाज। तो जो आम दिनों में 8 रकात तहज्जुद की नमाज जो होता है, वही रमजान के महीने में वही तरावी का नमाज है और वो 8 ही रकात है, 20 रकात नहीं है। इसीलिए 8 ही रकात तरावी की नमाज पढ़ी जाए। तो हमारी बहनों का सवाल होता है कि 2-2 करके पढ़े या फिर 4-4 करके पढ़े। तो मैं आपको बता दूं कि तरावी की नमाज आप 2-2 रकात करके ही पढ़ेंगी, 4-4 नहीं बल्कि 2-2 करके पढ़ेंगी। अब अगला मसला ये है कि अगर सूरे कम याद है तो फिर क्या करें? तो मेरी बहनों, अगर आपको 6 सूरे याद है तो आपको चाहिए कि आप 6 रकत में यही तरह, मतलब 6 सूरे जो आपको याद है आप अलग अलग पढ़ती जाएं। और जब सातवीं रकत के लिए आप जब खड़ी होती हैं, तो फिर आप फिर से उसी सूरे को रिपीट कर सकती हैं और आपको सवाब भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा, आप उसको दोबारा से दोहरा सकती हैं। और अगर किसी को 2 ही सूरे याद है तो बार बार करके आप रिपीट कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने जो जिस फालतू टाइम में आप फालतू काम करती हैं, गीबत, चुगली और मोबाइल चलाना, सीरियल देखना और पता नहीं क्या क्या करना, उन तमाम चीजों को छोड़ते हुए अगर आप सूरतें याद कर ले तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सूरत याद होगा तो आपके लिए सही होगा। इसीलिए हर मर्द और हर औरत के लिए इतना जरूरी है कि वो कम से कम 10 सूरतें तो याद ही कर लें, ताकि उनको उनके नमाज रोजे में कोई परेशानी और कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए आप अपने इन जो फालतू काम आप करती हैं जिस वक्त में, दूसरे का गीबत, चुगली और मोबाइल वगैरह देखने का, ये तमाम काम को अलग रखते हुए आप अगर कुरान की सूरतें याद करने लगे तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको 2 ही याद है तो आप बार बार दोहरा कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप और सूरतें याद करें। तो फिर अगला मसला क्या है? अगला मसला ये है कि अगर तरावी की नमाज आप घर में पढ़ रही हैं और कोई जरूरी काम आ गया तो फिर आप क्या करें?
तो अगर आप तरावी की नमाज 2 रकत पढ़ चुकी हैं, फिर इसी में आपको कोई जरूरी काम, बच्चा रोने लगा या फिर किचन में कुछ सामान रखी है खाना पकने के लिए, वो जल रहा है, या फिर कुछ ऐसा जरूरी काम आ गया जिसे आप नहीं करेंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर आप वो काम कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप वो काम कर ले, क्योंकि नमाज में सबसे फर्स्ट बात ये है, सबसे मेन बात, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंसान को नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। और अगर आपका बच्चा रो रहा है, अगर आपके किचन में कुछ खाना जल रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो फिर अगर आप नमाज पढ़ भी रही हैं तो आपका दिल नमाज में नहीं लगेगा, बल्कि आप इसी के बारे में सोचती रहेंगी। इसीलिए आप पहले वो काम निपटाएं, उस काम को करें, फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ें। लेकिन हमारी बहनें क्या करती हैं, नमाज को तो फटाफट पढ़ लेती हैं और काम को इत्मीनान से करती हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि आप नमाज को इत्मीनान से पढ़ें, काम को जल्दी जल्दी कर लें। जल्दबाजी से काम लेंगे अगर काम करने में, घर के काम करने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर का काम भी इत्मीनान से करें और नमाज भी इत्मीनान से पढ़ें। अब रहा अगला मसला क्या है, क्या हम बैठ के तरावी की नमाज पढ़ सकती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है, अब मामूली सा पैर दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप बैठकर नहीं पढ़ सकती हैं। आपको अगर कोई परेशानी है, अगर कोई औरत हमल से है, और कोई किसी औरत के पैर में दर्द है, या फिर कोई और ऐसा मसला है कि अगर आप खड़े होकर पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, परेशानी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तो आपको चाहिए कि आप तरावी की नमाज बैठकर पढ़ लें। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं है और ऐसे में अगर आप तरावी की नमाज बैठकर पढ़ती हैं तो आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगा और अल्लाह ताला आपको पूरा सवाब देगा। लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है फिर भी आप बैठकर पढ़ती हैं तो यकीन जानिए कि आपके लिए बेहतर नहीं है। इसीलिए आप जहां तक हो सके तरावी की नमाज या फिर कोई भी नमाज खड़े होकर ही अदा करें। ये सबसे सही होगा आपके लिए। तो ये चंद मसले थे, ये चंद सवालात हैं जो हमारी माओ और बहनों की तरफ से हमेशा मिलते हैं कि इसके बारे में मसला पूछा जाता है। इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में इन तमाम कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगा। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम तमाम मुसलमानों के लिए निजात और बख्शिश का जरिया बना और हम सबको जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।